Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department and IIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 6, that is Memory Part 2 from the unit Data Converters of the subject Digital Technique. The course outcome related to this topic is Test Data Converters and PLDs in Digital Electronic System. So the course outcome is Test Data Converters and PLDs in Digital Electronic System. The learning outcomes related to this topic means after completion of this topic you will be able to understand the concept of memory and its classification, meaning of read-only memory and its type and need, comparison of different types of memory. Now, as you already know, in the previous lecture we already discussed about the memory. A memory unit is a device to which binary information is transferred for storage and from which information is retrieved when needed for processing. यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और वहाँ से डेटा को हम रिट्राइव यानी बाहर भी निकाल सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन. A memory unit stores binary information in groups of bits called word. The internal structure of the memory unit is specified by the number of words it contains and the number of bits in each word. यानी मेमोरी जो बनती है तो वो डेटा को स्टोर करती है, तो नंबर ऑफ बिट्स को भी वो एक साथ स्टोर करती है जिसे हम वर्ड कहते हैं, है ना. तो ये नंबर ऑफ बिट्स को कभी कभी एक एक बिट करके भी बाहर निकाला जा सकता है या कंप्लीट ग्रुप ऑफ बिट्स भी हम बाहर निकाल भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं. Now what do you mean by the read only memory? In the previous lecture we have discussed about the RAM, that is random access memory, जो कि volatile होती है. इसका मतलब वो टेम्परेरी होती है, पावर कट ऑफ होने के बाद में वो उसमें जो डेटा होता है वो निकल जाता है. लेकिन उसके अपोजिट काम करने वाली एक मेमोरी होती है, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी. सो ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन ROM आर स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग. इसलिए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ सिस्टम रन होता है, वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही उस मेमोरी में कुछ डेटा ऑलरेडी स्टोर करके रखा है. तो दैट memory is nothing but ROM, that is read only memory. This data and programs cannot be changed or deleted afterwards. The data or instructions stored in ROM can only be read but new data or instructions cannot be written into it. यानी ROM वाली जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर्ड है उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको हम अपडेट नहीं कर सकते या उसमें और एक्स्ट्रा कुछ हम लिख नहीं सकते. दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड एज रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं. ROM स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस permanently. When the power is turned off, the instructions stored in ROM are not lost. So अभी आपको पता चला है कि what is the basic difference between ROM and RAM, that is random access memory and read only memory. That when the power is turned off, the instructions stored in ROM are not lost. यानी पावर ऑफ होने के बाद भी ROM में जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो लॉस नहीं होती है, लेकिन रैम के साथ में ऐसा नहीं होता है. जैसे ही पावर ऑफ होता है उसमें स्टोर की गई इंस्ट्रक्शन भी हो जाती है, चली जाती है. सो इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है ROM को. नेक्स्ट, ROM is used to store frequently used instruction and data to control the basic input and output operations of the computer. Mostly frequently used small programs like operating system routine and data are stored into the ROM. When the computer is switched on, instructions in the ROM are automatically activated. These instructions help the booting process of the computer. यानी हम बोलते हैं ना कंप्यूटर का बूटिंग हो रहा है, तो उस बूटिंग प्रोसेस को करने के लिए यानी पावर ऑन करने के बाद जो पूरा मेमोरी के डेटा ऑटोमेटिकली सिस्टम पे आना चाहिए, जो ये परमानेंट है, जो बार बार रन करना ज़रूरी होता है, दैट बूटिंग प्रोसेस में हमको ROM हेल्प करता है. Next, there are few types of ROM, that is mask ROM, programmable ROM, that is called as PROM, erasable programmable ROM यानी EPROM, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM यानी EEPROM, दैट इज़ EEPROM. ठीक है. सो अभी इनका हमको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि प्रोग्रामेबल ROM यानी क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल है इसका मतलब उसमें से डेटा हम इरेज भी कर सकते हैं या नहीं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है इसका मतलब इरेज करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है या नहीं. नाउ वी विल सी अबाउट द PROM. PROM stands for programmable read only memory. This is the form of ROM. यानी
हम इसका मतलब ही प्रॉम को जब हम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो इसका मतलब वो बेसिकली उसके ऊपर कुछ भी डेटा नहीं होना चाहिए इनिशियली, दैट इज़ इन द ब्लैंक पोजीशन, तभी हम उसको प्रोग्राम कर पाएंगे. The user or manufacturer can write data or program on it by using special device. However, once the program or data is written in PROM chip, it cannot be changed. एक बार अगर हमने PROM के चिप पे डेटा अगर स्टोर कर दिया तो वी कैन नॉट चेंज दैट डेटा. इफ देयर इज़ एन एरर इन राइटिंग इंस्ट्रक्शन और डेटा इन प्रॉम, द एरर कैनॉट बी इरेज. अब देखिए, अगर प्रोग्राम लिखते वक्त अगर कुछ एरर वहाँ पे हो जाती है प्रोग्राम लिखते लिखते, तो हम उससे एरर को हटा नहीं सकते. वो कंप्लीट हमारा जो प्रोग्रामिंग किया गया है वो वेस्ट हो जाता है और हमें नए आईसी पे या नए डेटा पे ही उसको फिर से वापस लेना ज़रूरी होता है, वो यूज़लेस हो जाता है. इसीलिए प्रॉम चिप जो होती है वो अनयूजेबल हो जाती है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते बाद में. अब देखिए ई प्रॉम यानी इरेजेबल. तो इरेजेबल प्रॉम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दिस फॉर्म ऑफ रॉम इज़ ऑल्सो इनिशियली ब्लैंक. ये भी इनिशियल लेवल पे ब्लैंक ही होती है क्योंकि इसको प्रोग्राम करना है इसलिए. द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट द प्रोग्राम और डेटा ऑन इट बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइस. जस्ट लाइक प्रॉम, ये भी लाइन सेम ही है कि हम उस पर डेटा को राइट कर सकते हैं. इनिशियली ये ब्लैंक होती है, लेकिन प्रॉम में क्या था, एक बार अगर हमने डेटा लिख दिया तो उसको हम इरेज नहीं कर पा सकते थे या उसको हम उस पर वापस लिख नहीं पा सकते थे. लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉम, अनलाइक द प्रॉम, द डेटा रिटर्न इन प्रॉम चिप कैन बी इरेज बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइस एंड अल्ट्रावायलेट रेज. यानी अगर हम लिखते लिखते कुछ एरर्स भी हुई है तो उस एरर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. सो प्रोग्राम और डेटा रिटर्न इन ई प्रॉम चिप कैन बी चेंज एंड न्यू डेटा कैन ऑल्सो बी एडेड. व्हेन ई प्रॉम इज इन यूज, इट्स कंटेंट कैन ओनली बी रीड. ये स्पेशलिटी है कि जब जब ई प्रॉम का चिप यूज़ में होता है हम उस पर कुछ भी लिख नहीं सकते, हम जस्ट उसको रीड कर सकते हैं. नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ EEPROM. द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज फॉर एन EEPROM मेमोरी चिप इज़ टू स्टोर कंप्यूटर्स BIOS विच इज़ यूज इन ऑर्डर टू बूटस्ट्रैप द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर. यानी बूटस्ट्रैपिंग में हम यूज़ कर सकते हैं EEPROM को. EEPROM ऑल्सो ऑफन फाउंड इन द डेवलपमेंट ऑफ वीडियो गेम्स cartridges. Some microcontrollers use an on-chip EEPROM in order to store their program. Example are some versions of the Intel 8048 as well as C versions of the PLC microcontroller. यानी कुछ मैन्युफैक्चरर्स या कुछ इंडस्ट्रीज़ उसको इनबिल्ट चिप करके यानी उस चिप पे पूरा अपना डेटा स्टोर करके उसको यूज़ कर सकते हैं. These microcontrollers were built with a window for debugging and program development purposes. The same chip are also developed in opaque OTP packages for production purpose. Now again we will see some another applications of EEPROM. EEPROM memory is used in computers as well as other electronic devices in order to store small amount of data which must be saved when power is removed, such as in calibration tables or devices configuration. यानी पावर जाने के बाद भी कुछ डेटा को हमको स्टोर करके रखने की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम EEPROM यूज़ कर सकते हैं. If larger amount of static data needed to be stored like USB flash drives, flash EEPROM is more economical to use than a traditional EEPROM device. EEPROM memory can also be found in various other production which are not strictly memory products, including digital potentiometers, digital clocks and digital temperature sensors. यानी ये भी majority applications हो सकते हैं EEPROM और EEPROM के. These devices can have a small amount of EEPROM in order to store calibration information or other data which need to be available in case there is a loss of power. Now this is the basic difference between RAM and ROM. Operations involve read and write. लेकिन यहाँ पे ROM में सिर्फ रीड वाला ही रहेगा, हम उस पर कुछ भी लिख नहीं सकते हैं. लेकिन रैम में हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. RAM is for temporary storage but ROM is for permanent storage. There are two types of RAM, SRAM and DRAM, but here there are three types of ROM: PROM, EEPROM and EEPROM.
एप्लीकेशंस कैलकुलेटर्स में होता है यूज़, कंप्यूटर्स में होता है, जहाँ पे हमको इजीली कैलकुलेटर में हमने टेम्पररी कुछ मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस किए और फिर वापस उसको इरेज करना है, फिर से हमको नया कैलकुलेशन करना है। सो कैलकुलेटर्स में हम रैम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर का जो बूट स्टेपिंग प्रोसेस होता है या बूटिंग प्रोसेस होता है या सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो रोम पे रन होते हैं, इसलिए उसके एप्लीकेशन कंप्यूटर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर में है। नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन इज बिटवीन EEPROM एंड EEPROM। अभी आप लोगों को पता चल गया है कि EEPROM एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट टेक्निक यूज टू इरेज डेटा, और यहाँ पे अ वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट टू 20, क्योंकि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल कहा गया है इसलिए यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करना ज़रूरी है। अ वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट टू 25 वोल्ट इज अप्लाइड टू इरेज डेटा। सिलेक्टिव इरेजिंग इज नॉट पॉसिबल, ऑल लोकेशंस गेट इरेज्ड। सिलेक्टिव इरेजिंग इज पॉसिबल, यानी कुछ पार्ट हम इरेज कर सकते हैं डेटा का, अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी इरेज। 10 to 15 मिनट्स लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेजिंग। EEPROM को अगर इरेज करना है तो 10 से 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन वही EEPROM में 10 मिली सेकेंड्स में हम ये काम कर सकते हैं। EEPROM इज़ लेस एक्सपेंसिव बट एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से EEPROM इज़ मोर एक्सपेंसिव। EEPROM में इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव EEPROM फ्रॉम सर्किट फॉर इरेजिंग डेटा। हम उसमें डेटा को इरेज नहीं कर सकते, तो उस और इरेज करना भी है तो हमको सबसे पहले उस चिप को सर्किट से बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे EEPROM में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमूव EEPROM फ्रॉम सर्किट फॉर इरेजिंग डेटा। नाउ EEPROM का एप्लीकेशन कहाँ पे है? इन कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड EEPROM का यूज़ कहाँ पे होता है? सेल फोन्स, डिजिटल कैमराज एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन EEPROM एंड फ्लैश मेमोरी। अब डेटा कैन बी इरेज ओनली बाइट बाय गिविंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस। EEPROM में डेटा को अगर हमको इरेज करना है, डिलीट करना है, तो वो बाइट बाय बाइट होगा, लेकिन फ्लैश मेमोरी में वो ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है। इसके बाद में ये बाइट प्रोग्रामेबल है तो ये ब्लॉक प्रोग्रामेबल है। EEPROM का कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन फ्लैश मेमोरी का कॉस्ट कम है। यहाँ पे EEPROM का जो स्पीड है दैट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू फ्लैश मेमोरी, बट फ्लैश मेमोरी का जो स्पीड रहेगा एज़ कम्पेयर टू EEPROM वो मोर है। लाइफ टाइम इज़ ग्रेटर देन फ्लैश मेमोरी। EEPROM की लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ टाइम यानी उसमें ज़्यादा खराबी नहीं आती है, ज़्यादा देर तक वो चल सकता है, इसलिए उसका लाइफ टाइम अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश मेमोरी। नाउ मेमोरी रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को किस टाइप से सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें लिखना नहीं है। तो ये अगर आप पढ़ते हो और इसके बाद में जो एक साइकिल दिया हुआ है, टाइमिंग साइकिल, उसके साथ में आपको मैच करना है। टू रीड डेटा फ्रॉम द मेमोरी द रीड साइकिल इज इनिशिएटेड बाय अप्लाइंग द एड्रेस सिग्नल। द वैलिड एड्रेस सिग्नल नीड टू बी मेंटेन स्टेबल फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, TRC द रीड साइकिल। यानी किसी भी डेटा को रीड करने के लिए सबसे पहले उसका स्पेसिफिक एड्रेस देना ज़रूरी है। उसके बाद में CS एंड OE सिग्नल्स आर एक्टिवेटेड। अब इनके क्या मीनिंग है ये आपको बाद में पता चलेंगे। तो CS एंड OE signals are activated after a delay of TGQ. The output enable access time measure with respect to the high to low transition of the OE signal. Valid data appears on the data lines. The TAQ address access time is measured from the beginning of the valid address that appears on the address line to the appearance of the valid data on the data lines. यानी ये जो TAQ है ये उस टाइम को एक्सेस करता है जो वैलिड होता है, वैलिड एड्रेस होता है, उसके बिगिनिंग से लेके नेक्स्ट जो एड्रेस लाइन आती है वहाँ तक वो उस डेटा को एक्सेस करता है। उसके बाद TEQ मेजर्स द चिप इनेबल एक्सेस टाइम। चिप इनेबल एक्सेस टाइम यानी चिप को इनेबल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको मेजर करने का काम TEQ सिग्नल करता है। इज़ द टाइम फॉर द वैलिड डेटा टू अपीयर आफ्टर हाई टू लो ट्रांजिशन ऑफ द चिप सिलेक्ट सिग्नल CS। अब ये जो चार्ट दिया हुआ है दिस इज़ कम्प्लीटली मेमोरी रीड ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। दिस इज़ चिप सिलेक्ट, ये जो टाइम है हाई टू लो ट्रांजिशन के लिए जाने वाला है। आउटपुट इनेबल अगेन फ्रॉम हाई टू लो ट्रांजिशन के लिए, और ये जो एड्रेस है प्रॉपर वैलिड एड्रेस, ये वैलिड एड्रेस को मेजर करने वाला जो टाइम है दैट इज़ TRC। ठीक है। नेक्स्ट इज द मेमोरी राइट ऑपरेशन। टू राइट डेटा फ्रॉम द मेमोरी
द राइट साइकिल इज इनिशिएटेड बाय अप्लाइंग द एड्रेस सिग्नल। अभी सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। द वैलिड एड्रेस नीड्स टू बी मेंटेन स्टेबल फॉर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन TWC, है ना। अब TWC यानी राइट साइकिल और TRC का मतलब क्या था, रीड साइकिल, द राइट साइकिल। नेक्स्ट CS and WE signals are activated. The write enable signal WE is activated after a minimum type of TSA, the address setup time, which is measured from the beginning of the valid address. The time for which the write enable signal remains active is known as the write pulse width. जिस वक्त तक ये जो राइट इनेबल सिग्नल एक्टिव होता है उस टाइम को कहा जाता है राइट पल्स विड्थ। आफ्टर द WE signal becomes active, the data is to be written in the memory at the address location is applied at the data lines. यानी ये सिग्नल एक्टिव होने के बाद ही हम डेटा को राइट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, एड्रेस लोकेशन पे जो डेटा लाइंस पे दी गई है। The WE signal must remain valid after data is applied at the data input lines and must remain valid for a minimum time duration TWD. The data must remain valid for a time THD whole time after WE signal is deactivated. यानी WE signal deactivate होने के बाद भी कुछ देर के लिए होल्ड टाइम ने एक्टिवेट रहना ज़रूरी है, अदरवाइज जो हमने डेटा स्टोर किया है वो इरेज भी हो सकता है। नाउ दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम। हम टाइमिंग डायग्राम का मतलब हम कैसे, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ रीड ऑपरेशन, मेमोरी रीड ऑपरेशन। यहाँ पे TRC के जगह पे TWC दिया हुआ है, दिस इज़ द एड्रेस, और इसके बाद में ये जो टाइम दिए हुए हैं इनेबल टाइम, होल्ड टाइम, ये होल्ड टाइम है, यानी पूरा डेटा हमारा ये ऑन होने के बाद भी होल्ड टाइम वाला डेटा हमारा चल ही रहा है। Now we can summarize this topic, means after completion of topic we came to know about the concept of memory and its classification, meaning of ROM and its type, comparison of different type of memories, रीड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, राइट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, और उन दोनों की टाइमिंग डायग्राम के बारे में। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will continue the topic with programmable logic device, that is PLDs. Thank you so much.